हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1031st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात केयर के साथ, केयर विमेन केयर के साथ। और धन्यवाद करता हूं मैं मेडी केयर हॉस्पिटल का, धन्यवाद करता हूं मैं डॉक्टर सरिता राय विद्यार्थी का, द powered by sponsor of Raj Ki Baat of the Women Care episode. Really want to thank Cosmodem, the clinic for skin, hair and aesthetics. A big thank you to Asian Multi-Speciality Hospital by Dr. Rahul Chaube. आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा ही संगीन और बड़ा ही सीरियस विषय है, जिसको लेकर समाज के अलग अलग तत्वों में अलग अलग हालात बन जाते हैं। जब इस किस्म की तकलीफ किसी महिला के साथ होती है तो वो सिर्फ महिला ही पीड़ित नहीं होती, पूरा का पूरा परिवार एक तरीके से पीड़ित हो जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन इज नॉट जस्ट अ फीमेल प्रॉब्लम, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस which has to be answered and the answers should be understood. समझने की ज़रूरत है, और समझाने के लिए हमारे साथ नागपुर शहर की, सेंट्रल इंडिया की जानी मानी कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता राय विद्यार्थी। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, पिछला एपिसोड आपका वायरल हुआ, हज़ारों लोगों ने आपके एपिसोड को देखा, पसंद किया, सराहाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। लेकिन मैम, आज का जो विषय है ये बड़ा ही सीरियस विषय है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप सेक्सुअल डिसफंक्शन को बड़े ही सरल तरीके से हमें समझाएं, हमारे व्यूवर्स को समझाएं। हाय, आई एम डॉक्टर सरिता राय विद्यार्थी, ओनर मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर. आई एम एन IVF specialist and a cosmetic gynecologist. Sexual dysfunction, it's a taboo topic. Nobody really discuss. They don't discuss with their partners. They don't discuss with their families, and they don't like to discuss with the health providers. Sexual dysfunction is a set of conditions which affect the sex life of the couple. Basically, it can be male or female. So we are not really going to talk about male factors के बारे में, like erectile dysfunction, retrograde ejaculation, and ejaculation. So those it is better understood by an andrologist or a urologist. आज हम लोग बात करेंगे फीमेल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। जी। Basically, some serious conditions, it can be due to decrease in hormonal level, it can be due to decreased libido, decrease in orgasm, or one of very sensitive topic, that is vaginismus. Sexual, yes. जी, आप Yes. कुछ प्लीज। Sexual dysfunction affects near about 30 to 40% of the females in any of the phases of their sexual life. So young patients, they do come to us, like I'm an IVF specialist. We are going to talk first about vaginismus, which is a really serious condition. My introduction to sexual dysfunction was as an IVF specialist, because बहुत सारे लोग आते थे, sexual history we take it in, like if they don't conceive, तो उनसे पूछा जाता था कि आपने क्यों नहीं conceive कर पाए. When coming to the sexual history, many of the cases were unconsummated marriage. That means कि कभी penetration हुआ ही नहीं. Then we started reading about it and what it is all about. Vaginismus affects near about 6 to 12% of the females. यानी इसमें like there is involuntary painful muscle contracts around the vagina and the anus. Even the thought of penetration, forget about the penetration, serious forms, even the thought of penetration, or even if we do a gynec examination भी करने जाते हैं, तो उनके मसल्स जो है बहुत कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉलेंट्री, ये नहीं है कि वो जानबूझ के उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जी, जिसके कारण हम लोग एग्जामिनेशन भी नहीं कर पाते। ये बहुत सारे लोग इसके वजह से हमारे पास में IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर IVF के लिए आते हैं। So like vaginismus is one major cause. Then second, it can be due to decreased libido with aging, dryness of vagina, decrease in thinning of the epithelium. लोगों का जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाता है जी।
and people don't give more importance to this, but sexual intimacy is very important. Like हम लोगों को बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, आई नीड टू डाइट, आई नीड टू एक्सरसाइज बिकॉज आई नीड टू बी हेल्दी. But sexual intimacy is very important to decrease your diabetes, your hypertension, and a good physical health. So, like these kind of female with aging, there is a big vacuum. Kids बड़े हो जाते हैं, they are in the age of 40 to 45. There is dryness of vagina. These things decrease in the moisture inside the vagina. More of basically it is a dry vagina. उन लोगों को then they don't have much excitement for sexual intimacy. That is one cause. Yes. मैम यस मैं और कॉजेस के बारे में जानना चाहता हूँ. So basically the hormonal level goes down with age. So that causes like decrease in the sexual intimacy frequency. So basically decrease, and there is decrease in orgasm. Near about like only 25% of the female they do appreciate orgasm, and rest I would say 75% they fake orgasm. Because हमारे Indian culture में we don't give value to sex education, and it is considered a very bad thing or a dirty thing. So and we never educate our girls about it, that there is something called as the G spots and orgasmic spots and the clitoral spots. So we never educate them, so they never feel it is necessary, or they fake orgasm. Male it is different, but for females they never feel it. So what you want to ask something? I just want to ask you मैम, जैसे आप बता रही हैं कि जो मेन कॉजेज होते हैं उसके, लेकिन मैम क्या बहुत सारे लोग ये मिथ भी हो सकता है कि menstrual issue can it be one of the reasons of sexual dysfunction मैम? No, not at all. Okay. Bleeding से sexual dysfunction का कोई भी कारण नहीं है. सेक्सुअल डिस्फंक्शंस अगर माइनर इश्यूज को ले, कोई इन्फेक्शन है, वेजिनाइटिस है इनसाइड, टेम्परेरी इन्फेक्शन है, इट कैन बी डिस्पेरोनिया, और सम सीरियस इश्यूज लाइक एंडोमेट्रियोसिस, उससे भी दे हैव डिस्पेरोनिया. बट जस्ट एट द एंट्री पॉइंट और दे डोंट एंजॉय सेक्स, there can be 3 to 4 major factors, or they can be have that क्योंकि पहले कोई ट्रॉमा रहा हो या डिस्टर्ब फैमिली लाइफ है. Those things, psychological things do matter. But like if I talking about the gynecological issues, इसमें it is a multidisciplinary approach. But gynecological issues में ज़्यादा से ज़्यादा we can have a decrease in hormone, decrease in the estrogen level वो हो जाता है. Then they have like dry vagina, orgasm, decreased orgasm which they don't know about it, and some serious conditions like vaginismus. These are the main things which causes your sexual dysfunction. But मैम जैसे sexual dysfunction की तकलीफ किसी को हो रही है, है ना, and the person gets this kind of symptoms जो महसूस हो रहे हैं, तो मैम उसके मन में इस किस्म के भी सवाल आते होंगे कि how to overcome this, what are the best practices, या उसका इलाज क्या है? सबसे पहले आपको अपनी हिचक को खत्म करना, यू हैव टू ब्रेक द आइस. उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, आप उन्हें बताएंगे नहीं, क्योंकि इस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए उनको सालों लग जाते हैं. डॉक्टर्स दूर की बात है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताते. जब हम लोग लाइक लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, उस टाइम हमें पता चलता है कि ओके बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो कि जिनको 10 साल शादी को हो गए, 7-8 साल शादी को हो गए, बट उनका कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ ही नहीं है. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं. और either it can be male factor or female factors. Male में they feel like I'll be less of a man, but it is nothing like that. It is a disorder, you need to get treatment. Females में वो फिर 7-8-10 साल के पास में हमारे पास में आते हैं. अगर हार्मोनल इशू है then we give estrogen creams हम लोग देते हैं. Lasers work wonderful. It is like we can tell that it is बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे कि हम लोग वजाइना का मॉइस्चर को बढ़ाते हैं. When we वहाँ पे कोलाजन बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ता है, लुब्रिकेशन बढ़ता है, their sexual life is better and they start enjoying their sexual life.
So laser, like at our center we are using CO2 Femilift laser, जो कि we do it for 3 sessions. Patients have like dramatic उनका improvement होता है in sexual life when we ask the questions after they come back after like 1 month, then there is a significant improvement in their sexual life. वो बहुत important है. Then जिनको hormonal issues है, we work on the hormones. बहुत सारे some are the psychological issues, so they need to be shown to a psychologist, and it's basically counseling should be done because everything starts from the mind. जी. In vaginismus में क्या होता है कि it's an involuntary, so we have to do something. You would have heard कि botox करते हैं face का, जी. कि जो lines आते हैं and we do botox to paralyze the muscles so that you look beautiful. जी. लेकिन vagina में it is used to treat a serious condition. So we are using botox for in the muscles around the vagina के around जो muscles रहते हैं उसमें हम लोग botox करके under short G एनेस्थीसिया के अंडर उसमें हम लोग बोटॉक्स डालते हैं so that वहाँ के जो मसल्स हैं वो पैरालाइज होते हैं, एंड देन वी पुट द बिगेस्ट डायलेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं. और जब लेडीज उठती हैं उस डायलेटर्स के साथ, जो बिगेस्ट साइज डायलेटर है, दे हैव इट इन माइंड, ओके आई एम फाइन, लाइक इवन पेनिट्रेशन मुझे कोई हार्म नहीं करेगा. जी. So they wake up with that. So and within 1 week, most of the patient they can have a good sexual life. मैम यहाँ पर दो इश्यूज हैं. Yes. एक इशू है साइकोलॉजिकल, Yes. जिसको लेकर आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. It's a वहाँ पर multidisciplinary, हमें साइकोलॉजिस्ट से बात करना है, जी. उनके साथ उनके कारण को समझना है. साइकोलॉजिकल इश्यूज नीड टू बी रूल्ड आउट. Maybe they have seen bad life previously, some trauma. Those are one issues. जी. दूसरा मैम, हम क्या ये थोड़ा सा आप समझा सकती हैं कि जो एज है Yes. सेक्सुअल डिसफंक्शन को ऑन ट्रैक लाने की, वो किस एज की फीमेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी? ये सेक्सुअल डिसफंक्शन तो कोई भी एज में हो सकता है. लाइक वैजिनिस्मस न्यूली मैरिड कपल है, शादी के पहले उन्हें पता नहीं है, बट यंग गर्ल्स आजकल हम लोग टैम्पून्स यूज करते हैं. जी. लाइक फॉर द मेंस्ट्रुअल कप्स आर देयर, टैम्पून्स आर देयर. जी. सो दीज गर्ल्स हु हैव वैजिनिस्मस, वो उस थॉट से भी डरती हैं कि टैम्पून हमें कुछ डालना है अंदर, या फिर हमें मेंस्ट्रुअल कप डालना है इंस्टेड ऑफ पैड्स. अभी आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स आ रहे हैं. जी. तो वो लड़कियां ये चीज़ों से डरने लगी हैं कि सो दैट कैन बी वन ऑफ द इंडिकेशंस कि उनको आगे चल के वैजिनिस्मस हो सकता है. बट मेनली सेक्सुअल डिसफंक्शन स्टार्ट अराउंड पोस्ट डिलीवरी के टाइम में स्टार्ट होता है. जी. देन वंस दे डिलीवर, मसल टियर होता है, वजाइनल लैक्सिटी होती है, उसकी वजह से वजाइना बहुत लूज हो जाता है. पोस्ट डिलीवरी दे हैव समथिंग लाइक, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंप्लेन के कि हमें ऐसा लगता है कुछ गैस निकल रही है वजाइना से. सो बिकॉज द टियर ऑफ द मसल्स, देन देयर इज माइल्ड यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी रहता है पोस्ट डिलीवरी. सो उसके बाद ही सेक्सुअल लाइफ मेनली फीमेल्स की थोड़ी कम हो जाती है. जी. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वजाइनल टियर हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ है, इट कैन बी रीजेवनेटेड. सो हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसमें लेज़र यूज़ कर सकते हैं. उसके जो वजाइना है, जो लूज, दैट इज़ लैक्सिटी है, लूज वजाइना है, उसको रीटाइटन कर सकते हैं. इसके लिए कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी लेडीज़ दे डोंट वांट टू गो अंडर नाइफ. कोई भी किसी को भी ऑपरेशन एक ऑपरेशन है जी. ऑपरेशन सुन के ही मैम कोई भी लेडीज़ डरने लगती है. जी. बट लेजर इज अ लाइक ऑफिस प्रोसीजर, कोई डाउन टाइम नहीं है इसका. 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है. दे हैव लाइक उनका वजाइनल जो है रेजुविनेट होता है, ल्यूब्रिकेट होता है, देयर इज टाइटनिंग ऑफ द वजाइना. सो दैट क्रिएट्स अ गुड सेल्फ एस्टीम इन द फीमेल, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड फ्रॉम एवरीवेयर. जी. ये चीज़ है. ऐसा नहीं है कि आप फेस, यू हैव टू लुक गुड फ्रॉम द बॉडी, इंटरनली यू नीड टू फील गुड. सो वी वांट टू बूस्ट अप द वेलनेस ऑफ द फीमेल. मैम, आपने ये कहा कि 3 सिटिंग्स होती हैं, 3 सेशंस होते हैं. मैम, आप ये भी बताइए कि ये क्या एक एक्सपेंसिव थेरेपी है, क्या ये एक एक्सपेंसिव सर्जरी है? It's not a surgery, it's just an OPD procedure. It is done in a like OPD room, laser therapy.
सो ये इसके लिए 3 सिटिंग्स लगती है जो कि 1 महीने के डिफरेंस में आता है। ओके The cost of like one sitting is first sitting is near about 15,000. Second sitting it costs around 7,000. The third sitting costs around 7,000. So Okay. 3 sittings ये तीन sit- लगते हैं। उसके बाद like yearly maintenance if you feel कि I'm having अभी फिर से मुझे प्रॉब्लम चालू हुई है तो ईयरली आप मेंटेनेंस लेजर की ले सकते हैं। मैम इस किस्म की थेरेपीज Yes. के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो अवेयरनेस है, जो Yes. एजुकेशन है, Yes. उसकी कहीं ना कहीं कमी है। क्या आप महसूस करती हैं? सेक्स एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड यंग। जो हम्म। गर्ल्स को nowadays we have lot of programs where sex education we have been starting in schools कि उनको हम लोग बता रहे हैं जी। कि there is nothing bad about it. It's not a dirty topic. You need to know about your body. लाइक फीमेल्स को ऑर्गेजम में पता ही नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जी स्पॉट्स इन देयर बॉडी। लाइक उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली दे आर पेइंग अस अपनी बॉडी के बारे में जानने, बट उनको पता ये दिस इज a platform where I can tell those females that you should know about your body. There is something called as clitoral orgasm. There is something called as G spots where orgasmic spots रहते हैं, and you can enjoy your sexual life, which is very important for you. आपके लिए बहुत important है। नहीं तो आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे, बट फिर भी यू विल हैव लाइक लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज। सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल। इसको बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मैम मेंटल इम्बैलेंस भी बहुत। Definitely, like those females who don't have a good sexual life, they are bound to get into depression, diabetes, hypertension. These are the things. Anxiety. Yes, and it's high time. हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जैसे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, वैसे ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम वेरी क्विकली आई आस्क यू Yes. दिस कि मैम सिम्टम्स क्या, बिल्कुल अगर आप ऑन द फिंगर अगर आप बताएं Yes. कि क्या सिम्टम्स महसूस हों तो आपको ये समझ में आ जाए कि आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है। अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है संबंध रखने की अपने हस्बैंड के साथ में, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपकी शादी हुई है, आप ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि तुरंत कांटेक्ट, अगर आपको लग रहा है 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपका पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है, कांटेक्ट नहीं हो पाया है, आप डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाएं। अगर आपको कांटेक्ट रखने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ड्राइनेस एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, आपको डॉक्टर्स को जाके दिखाना है। आई नीड टू डिस्कस विद देम, बिकॉज अगर आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, वी हैव लाइक now is the era कि we have lot of innovative health care is available for female। अगर जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपको इसका ट्रीटमेंट मिल नहीं पाएगा। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज जो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, It's a very harsh topic। यस एंड मैम Yes, बड़ा people don't talk about it। people don't talk Very about it, and more than that ma'am, it's something which which people think, Yes. which the word dirty. which it's dirty, bad। yeah, Yes। कि ये अरे क्या But, गंदी बातें हो if you रही see है। on the internet, जी। there is people do search for it lot। जी। But जब बात करना है उन्हें लगता है कि ये टॉपिक गलत है। जी। बट जब तक अपन बात नहीं करेंगे, हम लोगों को बताएंगे नहीं, उन लोगों को ये कैसे समझेगा? दे फील इनसिक्योर इनसाइड, दे फील दैट आई एम लेस ऑफ अ पर्सन दैन अदर्स। बट जब तक आप वो चीज़ को खुल के आप अपने डॉक्टर्स से डिस्कस नहीं करेंगे, इफ यू डोंट डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स, it's okay, but you need to discuss with your doctor that these are the issue which we are facing, और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है आज के डेट पे। मैम मेडिकेयर हॉस्पिटल जी। आपका मेडिकेयर हॉस्पिटल जो मानकापुर में है, जी। मैम जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम Yes. को लेकर, Yes. डू यू अप्रिशिएट देम फर्स्ट? Definitely। So we should, because they are thinking, because you need to think about your body, you need to think about your health। अपने हेल्थ के बारे में सोचना ये आपका सुप्रीम हक है, जी। rather than like ये सोचना कि ये डॉक्टर क्या सोचेंगे। डॉक्टर्स नोज अबाउट एवरीथिंग। जी। सो आप ये मत, यू डोंट फील अशेम्ड अबाउट इट कि डॉक्टर क्या बताएंगे या डॉक्टर क्या सोचेंगे या कोई फैमिली मेम्बर क्या सोचेगा। आप अपनी परेशानी डॉक्टर्स को जाके बताएंगे। इससे बहुत सारे लाइक इनफर्टिलिटी कपल्स जो कि 10 साल के बाद में आते हैं, वो अपने पास में जल्दी आ सकेंगे, दे कैन कंसीव नेचुरली। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लस फीमेल्स
who thinks like vagina is just for childbirth. It's जी. not just for childbirth. It is for your body. You need to take care of your intimate parts. You have the right to take care of your intimate parts. जी. So please feel free to go to your doctors or health providers, आप जहाँ भी रहते हैं, and take their help. मैम आज का ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभी तक के जितने भी 1000 से ज़्यादा शोज हुए हैं Okay. उसमें मैम ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको Yes. लेकर मैं चाहता था कि कोई बात करे, Yes. एंड आई एम सो थैंकफुल कि आज आपने इस विषय पे बात We किया need है. to open about such topics. Unless we talk, लोगों को कैसे पता चलेगा कि this is not a topic to be shameful about. It's a topic to discuss about सुपर something. सुपर गुड वन मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने Thank you. सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर में I just बहुत want सारे to say, just break the ice, talk about it. टॉक अबाउट. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. थैंक यू. डॉक्टर सरिता राय विद्यार्थी से सेक्सुअल डिसफंक्शन को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई. जो बात मैम हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो शायद बड़ी सरल लगती होगी. क्यों लगती होगी? क्योंकि बात सरल ही है. हम इसको पहाड़ बनाकर बैठे हैं. हम सब जानते हैं कि हम सबके शरीर एक जैसे ही हैं. कोई किसी को 2 नाक दिया है भगवान ने, 4 कान दिए हैं? नहीं. हम सब के पास सब चीज़ें वैसी ही हैं और कभी भी किसी को भी कोई भी इश्यूज आ सकते हैं. फिट दिखने वाला व्यक्ति फिट हो ये ज़रूरी नहीं है. और एक बात, जिंदगी भर महिलाएं, लड़कियां हर किसी से जी हर बात पे कहती हैं, लेकिन जब बात उनके जी स्पॉट की होती है उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता. क्या सेक्स एजुकेशन बच्चियों का, लड़कियों का अधिकार नहीं है? क्या उनको सब कुछ पता रहे? एजुकेशन, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया. हर चीज़ में एजुकेशन ज़रूरी है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये शो जितने पुरुष देखें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने घर की महिलाओं तक ये शो पहुंचाए. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होगी. हम एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं. कई सारे ऐसे कपल्स इस वक्त कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे. आप समझ रहे हैं इस बात को? एक घुटन क्या होती है? बच्चा है, घर हो चुका है, लेकिन फिर भी पति पत्नी अलग सोते हैं. कई कई दिनों तक उनका इंटरकोर्स नहीं होता, उनका वो रिलेशनशिप नहीं हो पाता जो उनका अधिकार है. अधिकार को समझिए. हर किसी के अधिकारों की रिस्पेक्ट हो, ये तो हमारा संविधान भी कहता है. उम्मीद है कि आप ये शो शेयर करेंगे. उम्मीद है कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने खास लोगों को एडुकेट करेंगे. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.